Good evening, everyone. So we are starting our topic, that is computer vision. I hope everyone is ready. So let's start. We have completed our chatbot and text analytics, means NLP. Under NLP, we completed our text analytics and yes, others. हमने क्या क्या कंप्लीट किया था NLP में? जल्दी बताइए. Very good. Yes, very good. So we have completed our NLP, that was natural language processing. Under that, we learned about text analytics, speech recognition, translation of text from one language to another language. Then we learned about chatbot, conversational AI, right? I hope आपने try किया होगा. Chatbot 2-3 ने मुझे send भी किए थे. और मैंने आपको एक बात बोली थी कि चैटबॉट अपना प्रिपेयर करने के बाद उसे किसी ना किसी चैनल के साथ कनेक्ट करना. सो आई नो दैट यू मे बी ट्राइंग, राइट? सो दैट्स फाइन. लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज कंप्यूटर विजन. So what is that computer vision? So in this class we are going to study about computer vision concepts. What is computer vision? Application of computer vision and as well. So cognitive services, image analysis with the computer vision service, training models with the custom vision service, analyzing faces with the face service, reading text with the computer vision service, and the last, that is analyzing forms with the form recognizer service. So all these we are going to cover in this computer vision in Azure. So सबसे पहले हमें पढ़ना है computer vision. What is that? See, आपके सामने एक इमेज है, आप देख रहे हैं. इमेजेस मेड अप ऑफ पिक्सेल्स, राइट? तो अब पिक्सेल्स के फॉर्म में जो हमारी इमेज है, तो हमारी जो इमेज में जो पिक्सेल होते हैं 0 to 255 होते हैं, राइट? तो हमें हमारे मॉडल को ट्रेन करना होता है. तो ट्रेन करने के लिए हम पूरी इमेज को जब हम प्रोवाइड करते हैं हमारी मॉडल के अंदर, अपलोड करते हैं, तो जो वो मशीन लर्निंग मॉडल है वो कैसे एक्सेप्ट कर रहा है हमारी पिक्चर्स को पिक्सेल्स की फॉर्म में एज अ फीचर. जो ये पिक्सेल्स होता है एज अ फीचर एमएल मॉडल उन्हें एक्सेप्ट करता है एंड बेस्ड ऑन दैट हमें आउटपुट मिलता है, राइट? तो कंप्यूटर विजन पूरा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस देखते हैं तो हम एनालाइज कर पाते हैं कि व्हाट इज दैट. सिमिलर टू दैट वी वांट टू ट्रेन आवर मशीन लर्निंग मॉडल. हमें वही चीजें करनी, जैसे हम सेंस कर पाते हैं वैसे हमारे मॉडल्स भी सेंस कर सकते हैं. तो उन्हीं बेसिस पे हमें हमारे मॉडल्स को रेडी करना है. फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट कि एक छोटा बेबी होता है, तो जब हम उसे कोई चीज बता रहे होते हैं, ऑब्वियसली छोटे बेबी को कुछ नहीं पता होता. जब धीरे धीरे हम उसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं, दैट्स लाइक इट्स अ टेडी बियर, it's a toy car, it's a toy bus, like this. Once, twice, third time he or she will recognize that what is that object. Similar to that we are going to do or develop a model based on training. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें हमारे मॉडल को ट्रेन करना होता है. ट्रेन कैसे करेंगे हम सबसे पहले हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे इमेजेस के बेस पे. हमारी इमेजेस हम अपलोड कराएंगे हमारे मॉडल में और बेस्ड ऑन दैट ट्रेनिंग होगी. आफ्टर दैट we will do testing and the last step, that is publish. We will publish our model on the client side. जिनके लिए जैसे हमने अपना मॉडल रेडी कर लिया, so now we are sure that our model is working properly, so now we can deploy, means we can publish our model. So if anyone want to use that, they will simply ask from us about key and endpoint. We will provide them to that these things so they can use that service or model. So I think everyone is clear till now. So you can see that this is a, what are you saying in the picture, it's a made up of pixel. पूरी इमेज जो है आपकी पिक्सेल्स के फॉर्म में होती है जब हम एक मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं,
right? Now what is computer vision? Computer vision is one of the core area of AI. I told you, as we can sense, we can also train our model which can sense. Like, we are going to create solutions that enable AI enabled applications to see the world and make sense of it. अगर हमने हमारे मॉडल को इमेजेस के ऊपर इमेजेस अपलोड कर दिया, उनके ऊपर हमारे मॉडल को अगर हमने ट्रेन कर दिया है, फिर अगर हम उसे इनपुट दे रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल गिव अस द आउटपुट based on the score, that it is that much sure, means model will reply that whatever the output it is giving to us, that model is that percent sure. Probability, we can say that probability, precision, ये सब चीजें हमें मॉडल प्रोवाइड करता है. सो गाइज, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू ऑल दैट यू आर गेटिंग और नॉट. प्लीज लेट मी क्लियर हियर. ओके, सो हम सबको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, अपने आप से ये कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हम इसे सिखाएंगे नहीं. सिमिलर टू द बेबी, अगर हम बच्चों की बात करें, छोटे बेबीज की अगर हम बात कर रहे हैं, कि अगर हम उन्हें ट्रेन नहीं करेंगे, अगर हम उन्हें कुछ सिखाएंगे ही नहीं, तो वो कैसे सीखेंगे. सिमिलर टू दैट, अगर हम बात कर रहे हैं हमारी मशीन्स की, कि मशीन्स को अगर हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग काम करें, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, ट्रेन करना होगा हमारी मशीन्स को, हमारे मॉडल्स, राइट? सो हियर computers don't have biological eyes that work the way ours do, but they are capable of processing images either from a live camera feed or from digital photographs or videos. So जब हम हमारे कंप्यूटर्स में फॉर एग्जांपल डायरेक्ट फीडिंग कर रहे हैं, या फिर फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर हमारी मशीन्स को अपडेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, राइट? नाउ दिस एबिलिटी टू प्रोसेस इमेजेस इज द की टू क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर दैट कैन एमुलेट ह्यूमन विजुअल परसेप्शन. अब हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे जो मशीन्स हैं ये इमेज को प्रोसेस कर रही हैं, तो उन बेस्ड ऑन दैट प्रोसेसिंग ये क्या करेगी, विजुअलाइज करेगी. लाइक कि जैसे हम विजुअलाइज कर रहे हैं, कि हमें पता चल जाता है देखकर कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, सिमिलर टू दैट फिर मशीन्स भी हमें रिप्लाई करेंगे. आप लोग आजकल तो इतने सारे मॉडल्स बन चुके हैं, इतनी सारी वर्किंग हो रही है इन सब मॉडल्स के बेस्ड पर, कि अगर हम बात करें हमारे मोबाइल फोन्स की, तो मोबाइल फोन में हम देखते हैं कि हमारा फेस रिकॉग्नाइज, फेस पासवर्ड हम लगाते हैं ना, तो फेस वो रिकॉग्नाइज करता है पहले. जब वो फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है, आफ्टर दैट ओनली यू कैन ओपन दैट फोन. व्हाई? बिकॉज आपने ट्रेन किया हुआ है अपने फोन को कि आप ही के फेस पर ये अनलॉक होगा, अदरवाइज इट विल नॉट. Similar to that, we are going to use image analysis, image detection, object detection, image classification, face detection. All these things we will cover. Next, to an AI application, an image is just an array of pixel values. We have seen in the previous image. What was that? जो इमेज हमने अभी देखी थी, what was that? It's just an array of pixel values. जो pixel values है वो as a features हम मॉडल को ट्रेन करते हैं. जो मॉडल में जो पिक्सल जा रही है, जो इमेज की जो पिक्सल वैल्यू जा रही है, वो एज अ फीचर जा रही है किसके पास, मशीन लर्निंग मॉडल के पास, राइट? Now these numeric values can be used as feature to train ML models that make predictions about the image and its content. जब हमारे मॉडल को हमने रेडी कर दिया है, ट्रेन कर दिया है, आफ्टर दैट अगर हम उसे कोई इमेज दिखा रहे हैं बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा, तो डेफिनेटली हमें ये आउटपुट देगा. नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी इमेज क्लासिफिकेशन. इमेज क्लासिफिकेशन में क्या करता है, इमेज क्लासिफिकेशन में हमारे मॉडल को हमें हमारे डाटा के ऊपर सबसे पहले ट्रेन करना होता है. एग्जिस्टिंग डाटा जो है हम उसको अपलोड कराएंगे हमारे मॉडल पे, उसको ट्रेन करेंगे, देन वी विल टेस्ट कि हमारा मॉडल काम कर रहा है नहीं कर रहा. तो इमेज क्लासिफिकेशन में सिंगल इमेज को बताएगा कि ये इमेज है, किसकी है, जो लेबलिंग हमने उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में की हुई है, कि ये अगर टैक्सी है तो टैक्सी बताएगा, कार है तो कार बताएगा. वट एवर द इमेज वी आर गोइंग टू शो इट विल टेल अस. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. अगर हम सिंगल इमेज की बात
कर रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट इमेज क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मींस उस सिंगल इमेज में अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक हियर यू कैन सी बस, कार, साइकिल, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इस पिक्चर के अंदर, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है उस ऑब्जेक्ट के राउंड में, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या कर रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देगा आपके उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ और बताएगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, जिसके बेस पे हमने लेबलिंग की हुई है कि ये बस है, ये कार है, ये साइकिल है। हमने जिस बेस पे हमारे मॉडल को ट्रेन किया हुआ है वो हमें विद लोकेशन हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के देगा उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। देन सिमेंटिक सेगमेंटेशन। सिमेंटिक सेगमेंटेशन में क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट जो भी है, जिस भी पोजीशन पे है, उस पिक्चर को, उस ऑब्जेक्ट को वो कलर के थ्रू रिकॉग्नाइज करेगा। लाइक कि ये बस है तो उसको रेड कलर कर दिया है, अगर ये कार है तो इसको ब्लू कलर कर दिया, अगर साइकिल्स है तो उसको ग्रीन कलर कर दिया। तो दिस इज व्हाट सिमेंटिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इमेज एनालिसिस। इमेज एनालिसिस में क्या होता है कि ये पूरा एक सेंटेंस बना कर देगा आपको। लाइक आप एक पिक्चर को देख रहे हो तो पिक्चर में आपको क्या दिखा रहा है, ये जो भी आप देख रहे हो इस पिक्चर में वो आपको टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्लाई करेगा। लाइक ए पर्सन विद अ डॉग ऑन अ स्ट्रीट। तो हम सबको ये विजुअलाइज हो रहा है इस पिक्चर को देख के, और इमेज एनालिसिस के थ्रू भी हमें क्या मिलेगा, एक टेक्स्ट आउटपुट मिलेगा, जिसमें इस पिक्चर में जो आउटपुट मिल रहा है हमें वो मिल रहा है ए पर्सन विद अ डॉग ऑन अ स्ट्रीट। और अगर हम कोई और पिक्चर की बात करें या फिर किसी एक गर्ल के हाथ में बर्गर है तो वी कैन से दैट ए गर्ल इज होल्डिंग अ बर्गर। इस तरीके का कोई टेक्स्ट आपको डिस्प्ले होगा अगर उस इमेज में कुछ भी है। नेक्स्ट, फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन। व्हाट इज इट? सिमिलर टू ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में हम ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट कर रहे हैं, फेस डिटेक्शन में हम फेस डिटेक्ट कर रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फेस डिटेक्शन में क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि जितने भी फेसेस आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं उन सबके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, ये फेसेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उन्हें डिटेक्ट कर रहा है कि वो कहां पर है, और फिर उनके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के दे रहा है। सो दिस इज व्हाट फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन। दिस इज द एडवांस्ड वर्जन of custom vision. Next is what OCR, that is optical character recognition. इसमें क्या होता है कि आपके इमेज के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, whatever the text is given in that image, आपका वो टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हो इस इमेज के अंदर लिखा हुआ है द टोरंटो डोमिनियन बैंक। अब और भी हो सकते हैं, रिटर्न फॉर्म भी हो सकती है, प्रिंटेड फॉर्म भी हो सकती है, किसी भी तरीके की फॉर्म हो सकती है आपके, कोई भी रिटर्न टेक्स्ट है या टाइप टेक्स्ट है। तो ओसीआर क्या करेगा, वो टेक्स्ट को उस पिक्चर में से निकाल के आपको एक टेक्स्ट की फॉर्म में दे देगा। दिस इज व्हाट ओसीआर। यस गाइस, लेट मी नो दैट इट्स क्लियर टिल नाउ। There are two, image classification and image analysis. Which one? I didn't get you. Which one you want to know? Image classification or image analysis? I will show you. When we will do that program, now you will understand that how image analysis is working. Similar, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि अगर हम image analysis की बात कर रहे हैं तो उस image को वो text की form में display कराएगा। ओके, अभी आप इतना ही समझो, आप जब कोडिंग देखोगे, जब प्रोग्राम करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट? नाउ, application of computer vision. So most computer vision solutions are based on ML models that can be applied to visual input from cameras, videos और images. तो जितने भी हमारे कंप्यूटर विजन सॉल्यूशंस हैं
जो सारे के सारे बेस्ड है हमारे एमएल मॉडल्स पे, उन पे हम क्या कर रहे हैं कि हम विजुअल इनपुट फ्रॉम वीडियोस, इमेजेस, कैमरास, लाइव फीडिंग जो भी हम कर रहे हैं, तो हमें सॉल्यूशंस कहाँ से मिल रहे हैं? उस एमएल मॉडल से मिल रहे हैं। ठीक है, जो जितने भी हैं हमारे कंप्यूटर विजन सॉल्यूशंस, सभी के सभी हमारे एमएल मॉडल्स पे बेस्ड हैं। सबसे पहले एमएल मॉडल आपको पता ही है काम हमारा क्या है, कि सबसे पहले हम ट्रेन कराते हैं, देन टेस्ट करते हैं, आफ्टर दैट हम प्रिडिक्ट करते हैं। आप लोगों ने एमएल अभी पढ़ा ही होगा, रिसेंटली आप लोग कर ही रहे हो। तो एमएल मॉडल में क्या होता था, हम स्प्लिट करते हैं हमारे डाटा को, कि हम पूरे 100% डाटा पे हम हमारी नहीं करा रहे हैं ट्रेनिंग, हम 70% 80% पे टेस्टिंग करा रहे हैं, सॉरी ट्रेनिंग करा रहे हैं, और रेस्ट 20% हम टेस्टिंग के लिए छोड़ रहे हैं। 100% डेटा में से हम 70 और 80% पे हमारी ट्रेनिंग कराते हैं, रेस्ट 20% पे हम टेस्टिंग करते हैं कि हमारा जो एमएल मॉडल जो हमने तैयार किया है कि वो प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। आई एम राइट गाइस, यही है ना आपके एमएल में? सो नाउ इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो इमेज क्लासिफिकेशन अभी हमने पिक्चर के थ्रू समझा, एक बार थोड़ा टेक्स्ट के थ्रू आ जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ एमएल मॉडल टू क्लासिफाई इमेज बेस्ड ऑन देयर कंटेंट। जिस भी तरीके का हमने एग्जिस्टिंग डेटा से जब हमने हमारे एमएल मॉडल को प्रिपेयर किया हुआ है, बेस्ड ऑन दैट हम क्या कर सकते हैं, हमारी इमेज को क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट? फॉर एन एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सॉल्यूशन, you might use an image classification model to classify image based on the type of vehicle they contain. ट्रैफिक मॉनिटरिंग में भी हमारा इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल यूज हो सकता है। जस्ट लाइक कि अगर हमें क्लासिफाई करना है कि ये किस टाइप का व्हीकल है, ये किस टाइप का व्हीकल है, सो वी कैन यूज आवर इमेज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या होता है कि हमें उस विद इन द इमेज, विद इन द पर्टिकुलर इमेज हमें क्लासिफाई करने हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। हो सकता है ना कि सिंगल एक इमेज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने देखा ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम में भी हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल को यूज कर सकते हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल्स। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि अगर रेड लाइट की बात करें तो वहां पे बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं। रेड लाइट पे हम बात करें तो कार भी हो सकती है, टैक्सी भी हो सकती है, जीप, बस, बाइक, कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल्स। सो जब ये आइडेंटिफाई करेगा उनकी लोकेशंस को, तो साथ साथ एक बाउंडिंग बॉक्स बना देगा कि उनका जो लोकेशन है वो उस बाउंडिंग बॉक्स से आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। ठीक है, देन सिमेंटिक सेगमेंटेशन। It's an advanced ML technique in which individual pixels in the image are classified according to object of which they belong. इसमें क्या कर रहा है सिमेंटिक सेगमेंटेशन में, कि इंडिविजुअल पिक्सेल्स इन द इमेज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट टू व्हिच दे बिलोंग। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, अभी मैंने आपको सिमेंटिक सेगमेंटेशन में शो भी किया था कि जब ये उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है सिमेंटिक सेगमेंटेशन में, तो उन पिक्चर्स को कैसे एनालाइज कर रहा है ये पिक्सेल्स के लिए, पिक्सेल्स के बेस पे। तो उनको वो कलर कर देता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर, कि ये बस है तो इसको हमने रेड कलर करना है, ये साइकिल है तो इसको ग्रीन कलर करना है। लाइक दिस सिमेंटिक सेगमेंटेशन वर्क्स। अब ट्रैफिक मॉनिटरिंग सॉल्यूशन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। Might overlay traffic images with mask layers to highlight different what vehicles using specific colors. तो अगर हमें सेगमेंटिक सेगमेंटेशन को यूज करना है ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर, तो ये क्या करेगा, व्हीकल्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिफरेंशिएट कर देगा, राइट? नाउ नेक्स्ट इज इमेज एनालिसिस। इमेज एनालिसिस में अगर हम अपने मॉडल को प्रिपेयर कर रहे हैं, you can create solutions that combine ML models with advanced images. क्या कह रहा है ये, कि हम solutions create कर सकते हैं that combine ML models with advanced images, including tags that could help catalog the image or even descriptive captions that summarizes the scene. अभी हमने यही देखा था कि आपने जो इमेज देखी वहां पे, आपने अपने मॉडल को प्रिपेयर किया हुआ है, ट्रेन किया हुआ है। अब ये क्या करेगा, आपने टैग भी किया हुआ है। टैग इन द सेंस कि आपने पहले जब अपने मॉडल को प्रिपेयर किया था, ट्रेनिंग दी थी, तो टैगिंग की थी, लेबल्स दिए थे आपने। बेस्ड ऑन दैट तो ये क्या करेगा, आपकी पिक्चर को समराइज कर देगा। मींस आपका जो टेक्स्ट आपने देखा था कि एक्चुअली सीन में आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो, तो वो आपको एक समराइज फॉर्म में, एक टेक्स्ट फॉर्म, रिटर्न फॉर्म में आपको डिस्प्ले करा देगा। दैट इज व्हाट इमेज एनालिसिस। नेक्स्ट, फेस डिटेक्शन, एनालिसिस एंड रिकॉग्निशन। I told you about object detection, similar to that.
or we can say specialized form of object detection that locates human faces in an image. हमने अभी देखा था कि एक पिक्चर के अंदर जितने भी फेसेस हैं सबसे पहले उनको रिकॉग्नाइज करेगा एंड देन डिटेक्ट करके उनके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देगा. Within this face detection, we can also take some other details like age, emotional states, and recognize individuals. हमें अगर फेशियल फीचर्स या ज्योमेट्री एनालिसिस करनी है उन फेसेस पे, जस्ट लाइक एज, इमोशनल स्टेट्स, तो वो सब भी हमें फेस डिटेक्शन से पता चल सकता है. लास्ट दैट इज OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. इसमें मैंने आपको यही चीज बताई थी कि अगर कोई स्कैन्ड इमेजेस है, कोई रिटर्न टेक्स्ट है या कोई टाइप टेक्स्ट है, तो आपको वो टेक्स्ट फॉर्म में विजुअलाइज कराना है. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली यूज योर OCR, that is optical character recognition. So it's a technique used to detect and read text in photographs. For example, road signs or store fronts. इन सब पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा होता है. और टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्कैन डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स, इनवॉइस और फॉर्म्स. किसी भी फॉर्म से आपको अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो यू कैन यूज दिस OCR. नाउ लेट मी शो द डेमो. सी, आपके सामने कंप्यूटर विजन है, माइक्रोसॉफ्ट AI फॉर अ रिचर एक्सपीरियंस अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ विजुअल मीडियम्स. तो इस पे क्या कर रहे हैं, एनालाइज एंड डिस्क्राइब इमेजेस. अब आप क्या कर रहे हैं, इमेजेस को एनालाइज कर रहे हैं, इमेज एनालिसिस. तो देखिए यहाँ पे मैं किसी भी पिक्चर को क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है. आप टैग्स देख रहे हो. सबसे पहले टैग्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाटर, स्काई, लेक, आउटडोर, स्काई क्रेपर, रिफ्लेक्शन, ओवरलुकिंग, डे. तो ये सब कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस स्कोर दे रहा है. आप देख पा रहे हैं ना कि वाटर 100%, स्काई 100%, लेक 95%, डे 12% कॉन्फिडेंस. विद इन दैट हम इमेज एनालिसिस की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो ये डिस्क्राइब भी करेगा उस इमेज को. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं अ सिटी स्काईलाइन विद वाटर 27% कॉन्फिडेंस. जो इसने आपको डिस्क्राइब किया इस इमेज के बारे में, दिस इज व्हाट अ सिटी स्काईलाइन विद वाटर. नाउ रेसी कंटेंट, अडल्ट कंटेंट. अगर इस इमेज में कुछ ऐसा है जो that should not be in that image, तो वो आपको विजुअलाइज कराएगा कि इतना परसेंट कॉन्फिडेंस है. इसे बोला रेसी कंटेंट फॉल्स है और अडल्ट कंटेंट भी फॉल्स है, राइट. Similar to that you can check another image. If I'll see this one, so here you can see that tags. So you can see that in this image. तो इसे हमें बताया बिल्डिंग, कार, रोड, आउटडोर व्हीकल, लैंड व्हीकल, स्ट्रीट व्हीकल विद सम कॉन्फिडेंस स्कोर्स. आपको सब चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पे. देन इट्स एट साइड बुक ऑल्सो 36% कॉन्फिडेंस. तो आपको ये व्हाइट स्ट्रिपिंग दिखाई दे रही है. व्हाइट स्ट्रिपिंग जो एक साइड बुक के लिए होती है, लेकिन इसने इसका कॉन्फिडेंस 36% दिखाया बिकॉज इट इज नॉट दैट मच श्योर. Then he said description, that is what a yellow car on the street and with 55% confidence. Then racy content, adult content. So under this image analysis or describe image, so we got these things: tags, description, racy and adult content. Right now next I say read text in imagery. जैसे हमने अभी OCR की बात की थी. OCR में क्या हो रहा था कि जहां पे भी जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, by using this OCR we can extract. See in this image आपने क्या देखा यहाँ पे, 42 street 42, बस सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है इस पिक्चर के अंदर. अगर हम दूसरी पिक्चर ट्राई करते हैं, this one, so here you can see, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नो पेडिटेशन क्रॉसिंग, यूज क्रॉसवॉक. तो ये क्या कर रहा है, आपके टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर इमेज से. नेक्स्ट रीड हैंड राइटिंग इन इमेजेस. अब यहाँ पे भी आपने देखा कि मैंने बोला था कि चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो टाइप हो, किसी भी फॉर्म में अगर आपका टेक्स्ट है तो OCR के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए आप कि आपका एक रिटर्न टेक्स्ट है, तो इसको क्या किया, स्टील कट oats with apricots, cranberries and spices served with yogurt or milk. Next, that is recognize celebrities and landmarks. So here we can see that, like I say, this one,
that you can say here White House 99% confidence. जी क्या कर रहा है आपका कि अगर आपने रिकॉग्नाइज कराना है कुछ वेल नोन personalities or landmarks, so it will also tell us about that those things. If I'll say this one, so you can say Statue of Liberty 95% confidence. Yes guys, interesting or not? It's a machine now. Sometimes it gives us 100% result, sometimes it won't, but finally है तो ये machine ही ना. Next is computer vision and Azure. So हमें पता है कि जब हमें सर्विसेज यूज करनी है हमारे Azure की, तो Azure में हम सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव सर्विसेज की. इज इट गाइस? मेरे यहाँ से तो स्क्रीन विजिबल है, आप बताइए और किसी को विजिबल नहीं है स्क्रीन? इट्स विजिबल शाह गुप्ता, आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कीजिए बेटा. ओके ओके सी. So we were talking about cognitive services. We all know now cognitive services क्या होती है. Cognitive services क्या है हमारी AI application resource in an Azure subscription. देखिए अगर हमें स्टैंड अलोन सर्विसेज को यूज करना है लाइक कि टेक्स्ट एनालिटिक्स के लिए अलग रिसोर्स यूज करना है हमें, और हम बात करें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमें अलग रिसोर्स यूज करना है, बिकॉज कि जितना हम यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें बिलिंग करानी है, ठीक है. बट अगर हम बात करें कि कॉग्निटिव सर्विसेज की, तो कॉग्निटिव सर्विसेज सिंगल रिसोर्स ऐसा है जो मल्टीपल सर्विसेज के लिए यूज होता है. जैसे हमने बात की थी एनएलपी की, चैटबॉट की, और हम बात कर रहे थे एनएलपी के अंदर हमने जितना भी किया टेक्स्ट एनालिटिक्स, स्पीच रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन, उन सब में कॉग्निटिव सर्विसेज को यूज किया था. बट हियर वी कैन यूज वन मोर, दैट इज कंप्यूटर विजन, व्हिच इज आल्सो अ स्टैंड अलोन रिसोर्स. तो इट्स अप टू यू कि आपको जो भी यूज करना है, कॉग्निटिव सर्विसेज को यूज करना है आप कॉग्निटिव सर्विसेज को यूज कीजिए, कंप्यूटर विजन को यूज करना है आप कंप्यूटर विजन को यूज कीजिए. जस्ट बिकॉज कि इन दोनों का जो बस डिफरेंस इतना कि जो बिलिंग है वो अलग अलग होती है. कॉग्निटिव सर्विसेज को यूज करोगे तो डेफिनेटली कि इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बिलिंग करोगे. लेकिन अगर हम स्टैंड अलोन यूज करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू. अगर हम यूज कर रहे हैं इन दोनों चीजों को तो डेफिनेटली हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट किस चीज की है, हमारे एंड पॉइंट और ऑथेंटिकेशन की जो मेन है हमारी, क्योंकि अगर हम हमारे मॉडल को रेडी कर रहे हैं और अगर हमारे उस मॉडल को हमें यूज करना है, सो बाय दीज टू क्रेडेंशियल्स, हमारा की और हमारा जो एंड पॉइंट, इन दोनों के थ्रू ही हमारे हम सर्विसेज को यूज कर पाएंगे. नेक्स्ट, Azure provides a set of cognitive services that encapsulate common AI workloads, including computer vision tasks. As I told you right now that कि cognitive services के अंदर बहुत सारी services को हम use कर सकते हैं. तो ये कह रहा है कि that encapsulates common AI workloads, जिसमें computer vision भी आता है, computer vision भी आता है, custom vision भी आता है, बहुत सारी चीजें हैं जो cognitive service resource अकेले handle करता है. So to use cognitive services you must provision a resource in your Azure subscription. तो अगर आपको कॉग्निटिव सर्विसेज को यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, आपका Azure सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए. दिस कैन बी स्टैंड अलोन, सर्विस स्पेसिफिक रिसोर्स और जनरल कॉग्निटिव सर्विसेज रिसोर्सेज. आपको जो भी यूज करना है यू कैन यूज, बेस्ड ऑन दैट आपका कॉस्ट मैनेज होगा एंड एक्सेस टू दैट सर्विस इंडिपेंडेंटली. नेक्स्ट, with a general cognitive services resource enables you to combine all of your AI service in a single Azure service. अगर हम बात कर रहे हैं कि cognitive service अगर हम यूज कर ले, तो अभी हमने जितने भी मॉडल्स पे हम काम कर रहे हैं, जो भी कोडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सबके लिए हमें क्या यूज कर रहे हैं, कॉग्निटिव सर्विस. तो स्टैंड अलोन जाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं, एक कॉग्निटिव सर्विस के अंडर ही सबको रन कर रहे हैं. तो सभी कीज और एंड पॉइंट हमें बेस्ड ऑन कॉग्निटिव सर्विसेज ही मिल रहे हैं. राइट नाउ, इमेज एनालिसिस विद कंप्यूटर विजन सर्विस. यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इमेज एनालिसिस विद द कंप्यूटर विजन सर्विस. लेकिन उसके अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है वो सब देखिए एक बार. अभी हमने इमेज एनालिसिस ही किया था, वहां पे आपने देखा था ना क्या हुआ था वहां पे. या यू कैन चेक द बैलेंस.
So okay, means you want to say कि on which service my balance is means my amount is being used, right? Okay, I will let you know. Wait for that. Let me finish that. So अभी हमने इमेज एनालिसिस किया था, हमने अभी एक पिक्चर ही देखी थी डेमो के अंदर, तो वहाँ क्या कर रहा था, वो कैप्शन दे रहा था, टैग्स दे रहा था, रेटिंग दे रहा था। तो इसमें जो आपको कैप्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉकिंग ऑन अ स्लाइड वॉक, देन टैग्स, इसमें क्या क्या है, बिल्डिंग, जीन, स्ट्रीट, आउटडोर, जैकेट, सिटी, पर्सन, देन रेटिंग। आपको ये सारा का सारा ये जो कंटेंट है आपको कहाँ मिल रहा है, इमेज एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट, इमेज एनालिसिस विद द कंप्यूटर विजन सर्विस। तो इमेज एनालिसिस आपका कंप्यूटर विजन के अंदर आ रहा है। So here computer vision service provides a pre-trained computer vision model that you can use to analyze image. तो कंप्यूटर विजन सर्विस क्या कर रहा है, आपका एक प्री ट्रेन कंप्यूटर विजन मॉडल है दैट यू कैन यूज टू एनालाइज इमेजेस। मींस जब आप अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, एमएल मॉडल या आपका कंप्यूटर विजन मॉडल जिसको भी आप ट्रेन करेंगे उसके बेस पे ही आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब आपको ये बोल रहा है डिटेक्ट एंड लोकेट ओवर 10,000 क्लासेस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स, कि अगर आपने अपने मॉडल को ट्रेन किया हुआ है तो आप उस मॉडल के थ्रू 10,000 क्लासेस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हो। जनरेट ऑटोमेटिक कैप्शन फॉर द इमेज एंड अ सेट ऑफ रिलेवेंट टैग्स दैट रिलेट टू इट्स कंटेंट। अभी हमने प्रीवियस पिक्चर में ही देखा है कि क्या कर रहा है, कि कैप्शन बना के दे रहा है हमें उस पिक्चर में जो भी दिख रहा है आपको, देन टैग्स, देन रेटिंग्स, यही सब चीजें आपको ये बता रहा है कि जनरेट ऑटोमेटिक कैप्शन फॉर द इमेज एंड अ सेट ऑफ रिलेवेंट टैग्स दैट रिलेट टू इट्स कंटेंट। जो भी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है उससे रिलेवेंट आपको टैग्स भी मिलेंगे और आपको कैप्शन भी मिलेगा। टैग्स कैन बी यूजफुल इफ यू नीड टू इंडेक्स इमेजेस एंड सर्च फॉर देम यूजिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स। टैग्स क्या कह रहा है, कैन बी यूजफुल इफ यू नीड टू इंडेक्स इमेजेस एंड सर्च फॉर देम यूजिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स। तो जब आपको टैग्स मिल जाते हैं तो बेस्ड ऑन दैट आप अपनी इमेज को सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका डिटेक्ट एंड एनालाइज ह्यूमन फेसेस। हमने ह्यूमन फेसेस फेस डिटेक्शन की बात की थी, उससे पहले एक और चीज ये बता रहा है, डिटेक्ट एंड एनालाइज ह्यूमन फेसेस, अनेबल कंटेंट मॉडरेशन बाय आइडेंटिफाई इमेजेस दैट कंटेन अडल्ट, रेसी और गॉरी कंटेंट। पीछे वाली इमेज भी हमने देखी थी कि रेटिंग दे रहा था, क्या बता रहा था कि कहीं इसमें अडल्ट, रेसी और गॉरे कंटेंट तो नहीं है, तो इन सब की जो वैल्यू ये दे रहा है दैट इज फॉल्स। तो ये आपकी इमेज को अच्छे से क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है कि कहीं उस में कुछ इस तरीके का कंटेंट अवेलेबल तो नहीं है, अगर है तो वो उसके बारे में भी बताता है। देन डिटेक्ट एंड एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट इन एन इमेज, कि आपको क्या कर रहा है, कंप्यूटर विजन सर्विस एंड माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर कॉग्निटिव सर्विसेज ऑफरिंग प्रोवाइड्स प्री बिल्ट एल्गोरिथम दैट कैन प्रोसेस इमेज दैट यू अपलोड। अभी हमने क्या देखा था कि अगर आपकी पिक्चर में आपको पिक्चर को समराइज करके दे रहा है, उसके साथ साथ अगर हम ओसीआर को भी यूज कर लें तो क्या करेगा ये, उस इमेज में अगर टेक्स्ट है तो वो उसको भी एक्सट्रैक्ट करके दे देता है हमें। नेक्स्ट, यूजिंग द कंप्यूटर विजन सर्विस। अब अगर हमें या तो हमें कंप्यूटर विजन सर्विस को यूज कर लें या फिर हम कॉग्निटिव सर्विसेज को यूज कर लें, तो इट्स अप टू अस ना गाइस, क्योंकि दोनों से हमें मिलना क्या है, की और एंड पॉइंट मिलने, हमारे क्रेडेंशियल्स मिलने, उन दोनों को यूज करके हम हमारे मॉडल को पब्लिश करा सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप टू यूज कंप्यूटर विजन सर्विस इज टू क्रिएट रिसोर्स। अगर हमें हमारी कंप्यूटर विजन सर्विस को यूज करना है तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस रिसोर्स को क्रिएट करना होगा। हमने जब कॉग्निटिव सर्विसेज को भी यूज किया था, जब हम सबसे पहले मॉडल को तैयार कर रहे थे, तो हमने क्या किया था, हमारे इस रिसोर्स को क्रिएट किया था, तभी हमें क्या मिले थे, कीज और एंड पॉइंट मिले थे, राइट। सिमिलर टू दैट इफ आई से कि अगर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर विजन सर्विस की, तो हमें इसके लिए भी रिसोर्स को क्रिएट करना होगा। देन कंप्यूटर विजन इट्स अ स्पेसिफिक रिसोर्स फॉर द कंप्यूटर विजन सर्विस। यूज दिस रिसोर्स टाइप if you don't want to intend to use any other cognitive services, or if you want to track utilization and cost for your computer vision resource separately। तो ये चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं अब तक कि या तो हम स्टैंड अलोन रिसोर्स को यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो कोस्टिंग होगी वो सेपरेटली हो जाएगी। अगर हम बात करें कॉग्निटिव सर्विसेज के, उसके अपने फायदे हैं, क्योंकि कॉग्निटिव सर्विसेज के अंदर और भी बहुत सारे एआई वर्कलोड्स हैं, मींस एआई सर्विसेज को हम यूज कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर विजन की, फिर कस्टम विजन देखेंगे, हमने चैटबॉट भी देखा, हमने एनएलपी भी देखा, तो सब किसके अंडर आ रहा था, कॉग्निटिव सर्विसेज के अंदर।
है। तो कॉग्निटिव सर्विस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज को हम यूज कर सकते हैं। So if you plan to use multiple cognitive services and want to simplify administration and development, both type of resource will provide two pieces of information. हमें इन दोनों में से जिसको भी यूज करना है we can use. हमें सिर्फ दो ही चीजें रिक्वायर्ड है, that is what a key and the endpoint, right? तो ये दोनों क्या करेंगे जब हमें ये दोनों चीजें मिल जाएंगी. See, if you create a cognitive service resource, client application use the same key and endpoint. जब हमने हमारा रिसोर्स रेडी कर लिया है, हमारा मॉडल रेडी हो गया है, तो जब हम क्लाइंट साइट पे अपनी पब्लिश करा देंगे, डिप्लॉय कर देंगे हमारे मॉडल को, तो हम ये की और एंड पॉइंट प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट ही वो क्या करेंगे, उस मॉडल को एक्सेस कर पाएंगे ना. तो क्लाइंट एप्लीकेशन कैन देन सबमिट इमेजेस इन रेस्ट रिक्वेस्ट टू द एंड पॉइंट. तो क्या करेंगे, जो इमेजेस अब मॉडल बनाया है तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो टेस्ट करेंगे ना. हमने हमारे मॉडल को ट्रेन किया, टेस्टिंग किया, जब हम क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय कर रहे हैं हमारे मॉडल को, तो वो भी क्या करेंगे, वो टेस्टिंग करेंगे. तो टेस्टिंग करने के लिए उनके पास सबसे पहले कीज और एंड पॉइंट का होना बहुत जरूरी है. तो क्या करेंगे वो, दे विल सबमिट द इमेजेस इन रेस्ट रिक्वेस्ट टू द एंड पॉइंट using the key for authentication and retrieve analysis results from the response. Now training models with the custom vision service. अब आप देखना, अभी हम बात कर रहे थे इमेज एनालिसिस की, जिसमें हमने बात की कि वहां कंप्यूटर विजन यूज होगा. या तो आप स्टैंड अलोन सर्विस यूज करना चाहते हैं तो कंप्यूटर विजन यूज कर सकते हैं, या फिर कॉग्निटिव सर्विसेज जो मल्टीपल सर्विस का रिसोर्स है. अब अगर हम बात करें इमेज क्लासिफिकेशन की या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, तो हम यूज करते हैं कस्टम विजन सर्विस. कीप इट इन योर माइंड, अलग अलग रिसोर्सेज है. इमेज क्लासिफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए जो सर्विस यूज कर सकते हैं, स्टैंड अलोन सर्विस, दैट इज कस्टम विजन सर्विस, राइट. तो इमेज क्लासिफिकेशन हमें क्या पता चला था कि वो इमेज बता देगा कि किसकी इमेज है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में कि एक इमेज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सबको अलग अलग आइडेंटिफाई यानी कि डिटेक्ट करेगा और एक राउंडिंग बॉक्स बना देगा कि एक्चुअली उनकी पोजीशन क्या है, राइट. नाउ ट्रेनिंग मॉडल विद द कस्टम विजन सर्विस, तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं. इमेज क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें मॉडल को ट्रेन करना है, टेस्ट करना है और उसे पब्लिश करना है. सेम विद द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कि सबसे पहले हम हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे, मींस अपलोड करेंगे इमेजेस को, टैग करेंगे, ट्रेन करेंगे, एंड द लास्ट स्टेप दैट इज पब्लिश. आई एम रिपीटिंग माय स्टेप्स. Either we are talking about image classification or we are talking about object detection. In both, we are going to use our custom vision services. सबसे पहले हमने हमारा रिसोर्स सेलेक्ट कर लिया, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज आवर कस्टम विजन सर्विस, एंड देन वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर मॉडल. बट हम ट्रेन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास डाटा होना चाहिए. अगर एग्जिस्टिंग डाटा है दैट इज फाइन, बट इफ इट इज नॉट देन वी हैव टू अपलोड द इमेजेस. When we will upload the image, after uploading we will tag that image. हमें लेबल करना होगा कि हमारी वो जो इमेजेस हमने अपलोड किया वो किसकी इमेजेस है, बिकॉज जब तक हम टैग ही नहीं करेंगे, जब हम हमारी मशीन को हम बताएंगे ही नहीं है किसकी इमेज है, तो वो आउटपुट कैसे देगा. सो हम हमारी इमेजेस को अपलोड कराएंगे, लेबलिंग देंगे उसे, देन वी विल ट्रेन आवर मॉडल. आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम हमारे मॉडल की टेस्टिंग करेंगे. आफ्टर टेस्टिंग वी कैन पब्लिश आवर मॉडल और वी कैन डिप्लॉय आवर मॉडल ऑन द क्लाइंट साइड, right? So they can use our model or whatever the given thing. Then we will talk about the object detection, similar process. We will upload the image, we will tag the images, we will train the model, and the last we will publish the model. Yes guys, till now it's clear. Okay. सो कस्टम विजन सर्विस यूज करना है आपको, कॉग्निटिव सर्विसेज यूज करना है, बिकॉज अब बात कर रहे हैं हम इमेज क्लासिफिकेशन या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, तो ये सब भी कॉग्निटिव सर्विसेज के अंदर भी आ रहे हैं, क्योंकि कॉग्निटिव सर्विसेज का ही पार्ट है कस्टम विजन, या हम बात करें कंप्यूटर विजन. तो अगर हमें
पूरा का पूरा कॉग्निटिव सर्विसेज यूज करना है तो वी कैन यूज दैट। अगर हमें स्टैंड अलोन कस्टम विजन ही यूज करना है तो वी कैन यूज दैट, इट्स अप टू अस। ठीक है, तो कस्टम विजन जो है विच कैन बी आइदर अ ट्रेनिंग और अ प्रिडिक्शन रिसोर्स। कस्टम विजन दो चीजों के लिए यूज हो रहा है कि आपको या तो ट्रेनिंग के लिए यूज करना है या फिर प्रिडिक्शन के लिए यूज करना है। कॉग्निटिव सर्विस क्या कर रहा है, ट्रेनिंग, प्रिडिक्शन या फिर बोथ। सेम टाइम पे आप अलग अलग भी चूज कर सकते हो या फिर दोनों को भी चूज कर सकते हो। कस्टम विजन में दोनों चीजें अलग अलग है कि आप उसे एज अ ट्रेनिंग यूज कर रहे हो या एज अ प्रिडिक्शन यूज कर रहे हो, राइट। अब दोनों चीजें यूज कर रहे हैं, या फिर हम कस्टम विजन करेंगे या फिर हम कॉग्निटिव सर्विसेज को यूज करेंगे, तो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड अस कीज एंड एंड पॉइंट जिन्हें हम हमारे मॉडल में यूज करेंगे। नाउ यूजिंग द मॉडल फॉर प्रोडक्शन, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा मॉडल अगर रेडी हो गया है तो हमें प्रोडक्शन करना है हमारे मॉडल से, तो सबसे पहले हमें जब हम मॉडल को पब्लिश कराएंगे, हमारे मॉडल को हम नाम देंगे, उस मॉडल को जब हमें क्लाइंट एप्लीकेशन डेवलपर अगर उसे यूज करना चाहते हैं उस मॉडल को, तो क्या करना होगा, हमें एक आईडी देनी होगी, दैट इज व्हाट, प्रोजेक्ट आईडी। अभी तक हम सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहे थे, की एंड एंड पॉइंट। ध्यान से सुनना गाइस, अभी तक हम सिर्फ कीज और एंड पॉइंट या लोकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, बट अब एक और चीज ऐड हो रही है, दैट इज प्रोजेक्ट आईडी। दिस इज व्हाट कि आपने जो मॉडल बनाया है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उस प्रोजेक्ट को नाम दे रहे हो, जब अपने मॉडल को पब्लिश कर रहे हो, तो उस मॉडल को जब आप एक नाम दोगे, वो नाम उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट आईडी बनेगी। प्रोजेक्ट आईडी दैट विल बी द यूनिक आईडी ऑफ द कस्टम विजन प्रोजेक्ट। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसका यूनिक आईडी रहेगा। जब आपने मॉडल को ट्रेंड किया था उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट आईडी रेडी हो जाता है। तो प्रोजेक्ट आईडी, देन नेम यू असाइन टू द मॉडल ड्यूरिंग पब्लिशिंग। अब आप अपने मॉडल को नेम भी देंगे, देन प्रिडिक्शन, एंड पॉइंट, प्रिडिक्शन की। प्रोजेक्ट आईडी और मॉडल नेम आपको दोनों चीजें ट्रेनिंग टाइम पे मिल जाएंगी। देखिए, प्रोजेक्ट आईडी का क्या है, प्रोजेक्ट आईडी जब आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, एट दैट टाइम यू विल गेट योर प्रोजेक्ट आईडी। आफ्टर दैट जब आप पब्लिश करने वाले हैं, तो एट दैट टाइम यू नीड टू गिव द मॉडल नेम दैट विल बी यूज्ड एट द क्लाइंट साइड। एंड देन जब आपका पब्लिशिंग हो चुका है, उसके बाद आपको दो चीजें मिलेंगी, दैट इज प्रिडिक्शन, कि अब आपको प्रिडिक्ट करने हैं रिजल्ट्स। जब आपकी टेस्टिंग हो रही है तो प्रिडिक्ट करोगे ना कि आपका जो मॉडल है वो कितना परसेंट रिजल्ट सही दे रहा है, प्रिडिक्शन करेंगे ना। तो प्रिडिक्शन जो है, ट्रेनिंग के लिए मुझे की और एंड पॉइंट अलग मिलते हैं कस्टम विजन सर्विस से, और प्रिडिक्शन के लिए जो कीज और एंड पॉइंट है वो अलग होते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का कि हमें जो की और एंड पॉइंट यूज करने हैं वो प्रिडिक्शन वाले यूज करने हैं, ट्रेनिंग वाले यूज नहीं करने। जब हम हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे या फिर हमें जब हमारे मॉडल को डिप्लॉय करना है, at the time we need to provide our key and endpoint, so we will provide them prediction keys and endpoint. Now analyzing faces with the face service, so here you can see जब हमने बात की थी, it's an advanced version of object detection। ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहे थे, यहाँ फेसेस को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पिक्चर के अंदर दो फेसेस है, तो सबसे पहले दोनों फेसेस को रिकॉग्नाइज करके इसने डिटेक्ट किया और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के उसके बाद इसे फीचर्स दिए, दैट इज फेशियल एट्रीब्यूट्स लाइक एज एंड इमोशंस। अगर हम बात करें कि हमने हमारे मॉडल को ट्रेंड किया हुआ है बहुत सारी इमेजेस के ऊपर, नाउ आई वांट टू शो दिस फेस एंड आई वुड लाइक टू से कि आपके पास 20 पिक्चर्स हैं, उस पिक्चर्स में से मुझे बताओ कि ये वाली बंदी कौन सी है। ध्यान से सुनना गाइस, मैंने अपने मॉडल को 20 इमेजेस के ऊपर ट्रेंड किया हुआ है। नाउ आई वुड लाइक टू से कि मुझे अब टेस्टिंग करनी है अपने मॉडल की। अब मैंने उसको एक पिक्चर दिखाया एंड आई सेड कि मुझे ये वाली पिक्चर बताओ कि इन 20 इमेजेस में से कौन सी वाली है। सो लाइक दिस, एज यू आर सीइंग ऑन द पेज, जैसे आपको विजुअलाइज हो रहा है, तो अगर आपके पास इस तरीके की इमेजेस है तो वो आपको शो करेगा कि दिस इज समा एंड एज इज दिस एंड हैप्पीनेस इज दिस। कि अगर हमें फेशियल एट्रीब्यूट्स भी चाहिए तो बाय यूजिंग फेस सर्विस वी कैन टेक आउट, एंड दिस कम्स अंडर कंप्यूटर विजन। नाउ एनालाइजिंग फेसेस विद द फेस सर्विस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या करेगा कि फेस के साथ ही आपके बहुत सारे फेशियल एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फेस सर्विस। तो फेस डिटेक्ट करेगा, so analyzing faces with the face service, so face detection and analysis, it's an area of artificial intelligence in which we use algorithms to locate and analyze human faces in images or video content।
whatever the thing we are providing, based on that we will get the outputs. तो हम हमारे मॉडल को अगर वीडियो के बेस पे ट्रेन कर रहे हैं, इमेजेस के बेस पे ट्रेन कर रहे हैं, और आफ्टर दैट वी आर एक्सपेक्टिंग सम रिजल्ट्स, सो इट विल प्रोवाइड अस कि ये लोकेशन है, मींस ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के देगा उस स्पेस के राउंड ऑफ, और कुछ फेशियल फीचर्स जो हमें चाहिए कि ये हमें बताए. ठीक है, लाइक फेशियल एनालिसिस की बात करते हैं. मूविंग बियॉन्ड सिंपल फेस डिटेक्शन, सम एल्गोरिथम्स कैन आल्सो रिटर्न अदर इंफॉर्मेशन सच एज facial landmarks like nose, eyes, eyebrows, lips, and others. These facial landmarks can be used as features with which to train a ML model. अगर हम बात करें कि जब हम हमारे ML मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो हम उससे पहले ही बताएं फेस, नोज वगैरह, तो जब हम एट्रीब्यूट ओ um, कब से कब से हूँ मैं म्यूट पे? So you must tell me ना. Okay. So this slide or this one? Which slide we were? Okay. 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 Thank you. सी हम बात कर रहे थे फेस सर्विस की. तो फेस सर्विस में हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द इमेजेस एंड वीडियो कंटेंट. तो जब हमारे मॉडल को हम ट्रेन करते हैं फेस सर्विस में, तो ये क्या कर रहा है हमारा मॉडल, ये फीचर भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है. तो फीचर्स के थ्रू भी अगर हम चाहें कि वो हमें बताए कि ये किसके इमेज है, तो ये भी हमें बताएगा कि बेस्ड ऑन दोस फीचर्स. क्योंकि हमने क्या कहता है, जो मॉडल है हमारा एमएल मॉडल जो हमारा होता है, वो क्या करता है कि वो इमेजेस के पिक्सेल्स को रिकॉर्ड करता है एज अ फीचर, और न्यूमेरिक वैल्यूज को एज अ फीचर यूज करता है. तो जब हम अगर बोले कि हम फीचर्स ही बता रहे हैं कि उस जो बंदे की जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना है उस पिक्चर्स में से जो आपके पास कलेक्शन ऑफ सेट है, डेटा सेट है, तो वी कैन यूज दिस फेस सर्विस, facial recognition. So further application of facial analysis is to train a ML model to identify non-individuals from their facial features. I just told you कि हमें क्या करना है कि हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है. कहाँ से? आपके ऑलरेडी बने हुए डेटा सेट से. तो वी कैन एनालाइज और वी कैन आइडेंटिफाई देम बाय यूजिंग देयर फेशियल फीचर्स लाइक नोज, आईज, या कुछ फेशियल फीचर्स हम बता के हम एनालाइज कर सकते हैं. और क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी? यू कैन सी सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, मिसिंग पर्संस, आइडेंटिटी वैलिडेशन. या हम बात करें गाइस कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया में तो आपने देखा है ना ये चीज, फेसबुक में शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो. यस एनीवन? आपको लगता है कि फेसबुक पे यूज होती है फेस सर्विस? यस. आप बताइए कैसे यूज होती है फेसबुक पे फेस सर्विस? यस. अब देखिए ना, आप ये देखिए कि कोई आपका फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, और उसकी फोटोज है आपके पास, आपने अपलोड की हुई है फेसबुक के ऊपर, और सडन वो जो आपका स्कूल फ्रेंड है अभी तक फेसबुक पे नहीं था, उसने फेसबुक अभी ज्वाइन किया, तो व्हाट विल हैपन कि आपको वो आपके फ्रेंड लिस्ट में दिखाई देने लग जाएगा, दैट मे बी यू नो दैट पर्सन.
or maybe they will tag you similar to those. Yeah, one second hold. Yes guys, yeah. तो ये सारी आपकी एप्लीकेशन है आपके फेस डिटेक्शन एंड एनालिसिस की, ठीक है। नाउ अगर हमें यूज करना है हमारी फेस सर्विस को, तो ये दो रिसोर्सेज हैं आपके पास, दैट इज वन इज फेस एंड सेकंड वन इज कॉग्निटिव सर्विस। तो दोनों के बारे में अब हमें पता ही है चीज कि फेस सर्विस के लिए एक और स्टैंड अलोन है, दैट इज फेस। और अगर हमें कॉग्निटिव सर्विसेज को यूज करना है तो इट्स ऑलवेज देयर फॉर अस, राइट। नाउ the next, that is OCR. That was so here what will happen in the OCR by using OCR service. तो OCR सर्विस से क्या होगा, जो भी आपका टेक्स्ट है, रिटर्न टेक्स्ट है या प्रिंटेड टेक्स्ट है, उसको क्या कर देगा, टेक्स्ट की फॉर्म में आपको डिस्प्ले करा देगा। तो वट एवर form you want to use, that you can save that. So here I said detect the location of text like printed, handwritten. Option 4, quick text extraction from images और asynchronous analysis of larger scan documents. तो उन सब के लिए भी हमारा OCR यूज होता है। अब OCR रीडिंग टेक्स्ट विद द कंप्यूटर विजन सर्विस, तो ये भी कंप्यूटर विजन सर्विस के अंडर आता है। तो गाइज एक बार मुझे हल्का सा बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कस्टम विजन, कंप्यूटर विजन और फेस रिकॉग्निशन और OCR, राइट। तो लेट मी नो दैट कि इन सब के बारे में आप मुझे बताओगे कि स्टैंड अलोन कौन सी सर्विस को हम यूज कर सकते हैं। एंड एक फाइनल तो सबको पता ही है, दैट इज कॉग्निटिव, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दैट, राइट। अब आपको मुझे सिर्फ इतना आंसर देना कि आप लोग अगर मुझे ध्यान से सुन रहे हो, तो अभी तक जो भी मैंने बोला है, इमेज एनालिसिस है, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है आपका, OCR है, या फिर आप कहें कि फेस एनालिसिस है, जो भी है, इनकी स्टैंड अलोन सर्विसेज कौन कौन सी है, एक बार आप मुझे मैसेज कीजिए। कम ऑन गाइस, फास्ट, फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिकल भी करना है, जल्दी जल्दी बताइए।
Come on, rest others. I hope you are typing. आदित्य, अभी तो सिर्फ $2.3 ही तो यूज हुए हैं, $100 मिले हैं आपको। तो आप कॉग्निटिव सर्विसेज को तो यूज कर ही रहे हो ना। आप जब एजोर को स्टार्ट कर रहे हो तो कॉग्निटिव सर्विसेज के कीज और एंड पॉइंट को जब आप यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो सर्विसेज यूज हो रही है। आप एक काम करो, आप सब्सक्रिप्शन पेज है ना, वहां पे जाके चेक करो। मोस्ट आर फ्री। आप ऐसे करो, सब्सक्रिप्शन पेज पे जाओ, या फिर आप ऐसे करो, आपके पास बैलेंस चेक करने वाला लिंक है ना, वहां पे एक एमसीटी ऑप्शन आएगा, अब वहां पे क्लिक करो। यस अदर्स, गाइस डोंट डू लाइक दिस। सिर्फ आदित्य का रिप्लाई आया अभी तक। आई टोल्ड यू एमसीटी। I told you that if you are not going to reply, then you can drop yes or no. So I will move ahead. See, अभी तक हमने 3 स्टैंड अलोन सर्विसेज की बात की है, कंप्यूटर विजन, कस्टम विजन एंड फेस सर्विस। दैट्स ऑल। यस, एग्री और नॉट? हमने 3 सर्विसेज की बात की ना जो स्टैंड अलोन सर्विस थी, कंप्यूटर विजन, कस्टम विजन एंड फेस सर्विस। यस गाइस, व्हाई आई वांट टू रिपीट, बिकॉज बार बार नहीं होती है ये चीजें, तो मैं चाह रही हूँ कि जो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो एटलीस्ट एक बार क्लियर हो जाए, देन आप एक बार वीडियो देख लेना और वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगे आप सबको। से यस और नो। ओके, सो दैट वाज ओसीआर। ओसीआर क्या कर रहा है, सिर्फ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है उस इमेज में से, या जो भी आपका रिटर्न या फिर प्रिंटेड फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रीडिंग टेक्स्ट विद द कंप्यूटर विजन सर्विस, तो आप क्या कर रहे हैं, द एबिलिटी फॉर कंप्यूटर सिस्टम्स टू प्रोसेस रिटर्न और प्रिंटेड टेक्स्ट इज एन एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर कंप्यूटर विजन इंटरसेक्ट्स विद एनएलपी। अब टेक्स्ट की बात हो रही है तो क्या बात हो रही है, एनएलपी की बात हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि टेक्स्ट की बात हो रही है ना। तो ओसीआर में क्या हो रहा है, टेक्स्ट आपको सेपरेट करके दे रहा है, तो जिसमें कंप्यूटर विजन के साथ क्या आता है, एनएलपी। तो यू नीड सीवी कैपेबिलिटीज टू रीड द टेक्स्ट एंड देन यू नीड एनएलपी कैपेबिलिटीज टू मेक सेंस ऑफ इट। The basic foundation of processing printed text is OCR, that is optical character recognition, जिसका मेन जो नाम है वो क्या है, ओसीआर। जैसे हम सीवी और एनएलपी करके डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं लाइक ओसीआर, इट्स अ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन in which a model can be trained to recognize individual shapes as letters, numerals, punctuations or other elements of text। मतलब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, आफ्टर दैट वी कैन टेक आउट द आउटपुट, लाइक जो भी आपके उस इमेज के अंदर है या जो भी रिटर्न टेक्स्ट है वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, ठीक है। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रिंटेड एंड हैंड रिटन टेक्स्ट इन इमेजेस इज बेनिफिशियल इन मेनी सिनेरियोस सच एज नोट टेकिंग, such as
note taking, digitizing forms such as medical records or historical documents, scanning printed or handwritten checks for bank deposits. होता है ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें या बैंक्स की बात करें तो वहां पे क्या है, scanned images के ऊपर processing करना, it's not easy. What can we do? We can simply extract the text from those images and whatever the analysis we want to do on that we can do. So we can use that OCR in medical records, historical documents, bank deposits या फिर companies के records की बात करें, so we can use this. Okay, next. ये सब वही चीजें हो गई कि हम कौन सी सर्विस को यूज कर सकते हैं. तो वन इज कंप्यूटर विजन एंड अनदर इज कॉग्निटिव सर्विस. क्या क्या कह रहे हो आप आदित्य? एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस. वेयर आर यू? चैट. कॉग्निटिव सर्विसेज सुपरसेट. कॉग्निटिव सर्विसेज के अंडर ही आते हैं. कंप्यूटर विजन, कस्टम विजन, ये सब किसके अंडर आ रहे हैं हमारे? कॉग्निटिव सर्विसेज के अंदर. यस, ठीक है. तो अगर आप बात कर रहे हैं कि आप जब OCR के थ्रू जब आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट्स फ्रॉम द रीड API आर अरेंज्ड इनटू द फॉलोइंग हायरार्की. लाइक पेजेस हैं कि बहुत सारे अगर डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर लाइंस है या फिर वर्ड्स हैं तो उनके जो भी आपका गिवन है उन सबको वो एक्सट्रैक्ट कर देता है. नाउ नेक्स्ट आता है आपका एनालाइजिंग फॉर्म्स विद द फॉर्म रिकॉग्नाइजर सर्विस. ये एक और सर्विस है आपकी, फॉर्म रिकॉग्नाइजर सर्विस. अभी तक सिर्फ वो क्या कर रहा था कि टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहा था OCR, कोई फॉर्मेट नहीं दे रहा था. सिंपल क्या कर रहा था, जो भी टेक्स्ट गिवन है उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहा था. लेकिन फॉर्म रिकॉग्नाइजर सर्विस क्या करता है, जैसे कोई रिसिप्ट है, कोई बिल है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपने बोला एप्पल इतने हैं, ऑरेंज इतने हैं, सब टोटल इतना हुआ, टैक्स इतना हुआ, टोटल इतना हुआ. अब मुझे इस वाली फॉर्म, इस स्लिप को मुझे रिकॉग्नाइज करना है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है. अब क्या कर सकते हैं हम, फॉर्म रिकॉग्नाइजर सर्विस को यूज कर सकते हैं. वो क्या करता है, वो इसको जेसन की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करके देता है मुझे. डिक्शनरी लिस्ट के अंदर जो डिक्शनरी होते हैं उसकी फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करके देता है हमें फॉर्म रिकॉग्नाइजर सर्विस. ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, extract information from scanned forms in image or PDF format. ठीक है, train a custom model using your own forms, use a pre-trained receipt model. जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो किसी अपने फॉर्म को ट्रेन देकर के ट्रेन कर सकते हैं या फिर कोई पुरानी रिसिप्ट है, प्री ट्रेन्ड रिसिप्ट मॉडल्स. ठीक है, मॉडल्स परफॉर्म सिमेंटिक रिकॉग्निशन ऑफ फॉर्म फील्ड्स, नॉट जस्ट टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन. क्या कर रहा है ये, सिमेंटिक रिकॉग्निशन ऑफ फॉर्म फील्ड्स, नॉट जस्ट टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन. नाउ आई विल से एनालाइजिंग फॉर्म्स विद द फॉर्म. ये अभी हम जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी रिसिप्ट है, उसमें सब कुछ होता है ना, नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, डेट है, और उस बिल से रिगार्डिंग कि आपने क्या क्या खरीदा. जैसे हम स्टोर की बात करें, किसी स्टोर में अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो मल्टीपल आइटम्स हम परचेज कर रहे हैं तो रिसिप्ट आती है हमारे पास. या हम बात करें कंपनी की, कंपनी के अंदर क्या होता है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, मल्टीपल बिलिंग होती है कंपनीज की. तो हम हर इमेज को संभाल के तो नहीं रख सकते, या फिर हमें कुछ एनालिसिस करने हैं उनके डाटा के ऊपर, तो इमेजेस पे एनालिसिस नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. अब किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट करना, दिस इज वी कैन यूज बाय, वी कैन डू इट बाय फॉर्म रिकॉग्नाइजर सर्विस. तो फॉर्म रिकॉग्नाइजर सर्विस क्या करेगा, उसे जेसन की फॉर्म में अरेंज कर देगा. So let's move to the practice section. So it's here. First one is our image analysis.
तो हम सबका इमेज एनालिसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सबका कॉग्निटिव सर्विस रेडी है, हम लोग की और एंड पॉइंट यूज कर सकते हैं। यस गाइस, कॉग्निटिव सर्विस सबका रेडी है? आप लोगों ने एज़ोर पोर्टल को ओपन कर रखा है? आई होप सबने ओपन किया हुआ होगा। यस, तो पहले आप एक बार मुझे बताइए, आप लोगों ने अभी तक किसने वीडियो देखा है? यूट्यूब पे वीडियो किसने देखा है अभी तक? और सो यू डिडंट लाइक एंड सब्सक्राइब? आप सबने, ठीक है, आप सबने देखा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही होगा उस चीज का। यू डिड? But I didn't get any notification like this that you did subscribe or not. Actually, like भी नहीं थे वहां पर, तो I don't know कि आप लोगों ने देखी थी या नहीं देखी थी। Okay. So ready for with your cognitive services Azure portal home? So अब हमें क्रिएट करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारा कॉग्निटिव सर्विसेज रेडी है और हम बात करने वाले इमेज एनालिसिस की। तो लेट्स डू दैट। आपके पास डाटा फोल्डर है ही सबके पास, तो आप एक काम कीजिए, कीज और एंड पॉइंट उठाइए और कॉपी पेस्ट कीजिए यहाँ पे जल्दी से। और मैं आपको ये कोड भेज देती हूँ आपका। अभी फिलहाल एक बार आप कर लीजिए इस काम को। आप सबसे पहले अपना कॉग्निटिव की एंड पॉइंट कॉपी कीजिए वहां से और पेस्ट कर दीजिए। एंड नाउ वी विल इंस्टॉल आवर कंप्यूटर विजन, क्योंकि कॉग्निटिव सर्विसेज के अंदर हम कंप्यूटर विजन को यूज करने वाले हैं। सो इट्स हियर। नाउ अब देखिए, यस गाइस, डन टिल नाउ, डन। तो हम आगे चलते हैं। Okay, okay, fine. I'm waiting. Let me know then when you are all are done. गुड। अदर्स आप लोग भी बताइए। मोहम्मद, आपको अज़ोर पोर्टल पे जाना है। आपका अज़ोर पोर्टल मैंने ओपन नहीं किया हुआ है, लेट मी ओपन फर्स्ट। सी, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
आप अपने अकाउंट पे जाइए, पहले एजोर पोर्टल पे गए आप? यहाँ पे आए आप? आपने कॉग्निटिव सर्विसेज बनाया हुआ था मोहम्मद? आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा होम पेज पे। यस। मोहम्मद बताइए बेटा, आपका बना हुआ है या नहीं? आई होप आई एम ऑडिबल। यस अदर्स, आयुष, कामिनी, नमिता, शागुफ्ता, आप सबका हो गया है ये? आदित्य डन? नो, व्हाई? व्हाई आर यू टेकिंग टाइम? ओके फाइन, डू मोहम्मद। ओके देखो मोहम्मद, मैंने मेरी जो कॉग्निटिव सर्विसेज बनी हुई थी, मैंने उस पर क्लिक किया। मेरा था माय कॉग्निटिव 1। आपका जो भी है उस पर क्लिक करो और आपको यहाँ दिखाई देगा कीज एंड एंड पॉइंट। आपको इस लेफ्ट पेन के अंदर आपको दिखाई देगा कीज एंड एंड पॉइंट, दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए, ये रहा कीज एंड एंड पॉइंट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको कीज और एंड पॉइंट मिल जाएंगे लाइक दिस। शुड आई वेट मोर और वी स्टार्ट? जल्दी बताइए। हम्म, ओके चलिए, आई होप कि सबका हो गया है। चलिए ठीक है, माइन इज ऑल्सो डन। नाउ आई सेड कि अब हमें क्या करना है, इमेज एनालिसिस करना है। तो एक बार कोड देख लीजिए। व्हाट वी डिड, व्हाट वी सेड, आई सेड कि मैंने इमेज लिया, मैंने इमेज का मैंने पाथ दिया। मैंने क्या पाथ दिया, os.path.join, और मेरा जो भी पाथ था, डेटा में विजन में मेरा एक इमेज रखा हुआ है स्टोर cam1.jpg। आपके पास डेटा फोल्डर सबके पास है, वो इमेज उठाओ वहां से और उसको ज्वाइन करो। मैं कोड दे रही हूँ आपको 2 मिनट्स। देन आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने कॉग्निटिव सर्विसेज कंप्यूटर विजन के अंदर हमने इंपोर्ट कराया हुआ है कंप्यूटर विजन क्लाइंट। अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज की थी, यहाँ पर देखिए, क्लाइंट और सर्वर। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। देखिए, मैं कह रही हूँ यहाँ पे हम यूजर्स हैं और ये हमारा सर्वर है, हमारा एंड पॉइंट, ठीक है। और अब हमें चाहिए क्या, ये देखिए, हमारा ये सर्वर है, ये यूजर है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए हमें एक क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा कि यूजर से कोई इनपुट जाएगा और सर्वे के थ्रू आउटपुट जब आएगा तो वहां पर हम क्या चाहिए, एक क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट, हमने इसके बारे में पहले भी स्टडी किया था। क्लाइंट, अब यहाँ पर हमें जो क्लाइंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर हमें जो क्लाइंट मिल रहा है दैट इज व्हाट, कंप्यूटर विजन क्लाइंट। हम कंप्यूटर विजन सर्विस को यूज कर रहे हैं हमारे इमेज एनालिसिस के लिए, तो हमें क्लाइंट भी वही चाहिए। हमें क्लाइंट चाहिए कंप्यूटर विजन क्लाइंट, जो क्या करेगा, हमारी रिक्वेस्ट, हमारा जो भी प्रोसेस है वो कहाँ लेके जाएगा, सर्वर तक, और सर्वर से आउटपुट हमारे तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो वहां पे हमने बोला सेकेंड थिंग, हमें ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए कॉग्निटिव सर्विसेज क्रीडेंशियल्स। हमने की रिक्वायरमेंट होती है,
इसलिए हमने इसे इंपोर्ट कराया। देन आई सेड os डॉट पाथ ज्वाइन। अब हमने क्या किया, डेटा के साथ विजन के साथ एक और इमेज है दैट इज स्टोर cam1 डॉट jpg। हमने वो इमेज लिया यहाँ पर। देन आई सेड कंप्यूटर विजन क्लाइंट, हमने एक क्लाइंट क्रिएट किया। वेट, देन आई सेड कंप्यूटर विजन क्लाइंट। कंप्यूटर विजन क्लाइंट को हमने क्या चीजें प्रोवाइड किया है, कॉग्निटिव एंड पॉइंट और कॉग्निटिव सर्विसेज क्रेडेंशियल्स, और क्रेडेंशियल्स में क्या है, कॉग्निटिव की। क्लाइंट को दो चीजें रिक्वायरमेंट होगी ना सर्वर तक पहुंचने के लिए, की और एंड पॉइंट की, वहां से वो उस जो भी रिक्वेस्ट हमने किया उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आउटपुट दे हमें। देन वी सेड इमेज स्ट्रीम, एंड वी नो दैट हमारे पास टू टाइप की फाइल्स होती है गाइस। कौन कौन सी होती है, हमने किया था ना, फाइल्स कौन कौन सी होती है हमारी, एनीवन? हमने फाइल हैंडलिंग किया था, इफ यू रिमेम्बर ऑल। तो दो तरीके की फाइल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? यस बताइए मुझे कौन कौन सी होती हैं, भूल गए आप लोग? टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, only one answer I got, and that's really not good. So we are going to deal with binary files, with images we are going to do deal, so हम उन्हें बोलते हैं बाइनरी फाइल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उस बाइनरी फाइल को ओपन किया, हमने पाथ दिया और हमने उस बाइनरी फाइल को ओपन किया और उसको क्या ऑब्जेक्ट बना दिया, इमेज अंडरस्कोर स्ट्रीम। नाउ आई सेड कंप्यूटर विजन क्लाइंट का एक मेथड यूज किया हमने, डिस्क्राइब इमेज इन स्ट्रीम, और उसमें हमने जो दिया दैट इज इमेज स्ट्रीम। इमेज स्ट्रीम का क्या किया हमने, उसे ओपन किया हुआ है बाइनरी मोड के अंदर। देन विजन डॉट शो, कंप्यूटर विजन का जो हमने विजन इंपोर्ट कराया हुआ है, विजन डॉट शो इमेज कैप्शन। हमने इमेज एनालिसिस में आपको बताया था कि वो इमेज को देख के समराइज करके हमें बता देगा एक्चुअली इमेज में क्या है। सो हियर यू विल सी शो अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर कैप्शन, और हमने उसमें क्या दिया, इमेज पाथ और डिस्क्रिप्शन। व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दिस यू विल सी it's executing. Yes, see in this image what is happening, इसने बताया a woman showing her phone to a child, confidence 39.05%, maybe it will be getting another thing also. So इसने हमें जो दिया समराइज करके दे दिया हमने हमें उस इमेज के बारे में, व्हाट इज दैट, अ वुमन शोइंग हर फोन टू अ चाइल्ड। यस गाइस, अभी इमेज मैंने अपने वाली दी है, आप वही वाली ले लो, आप वही वाली इमेज लो, या फिर आप ऐसा करो कि आप अपनी कोई इमेज उठाओ, अपनी वाली कोई इमेज को पिक करो और उससे एनालिसिस करो दैट दिस कोड इज वर्किंग और नॉट ऑन दैट। This image is already given to you by me in the data folder. In Vision, there is an image that is stored. You need to create again. तो अब आप क्या करोगे, आप ये वाला इमेज तो मैंने कर दिया, अब आप ऐसे करो कोई और इमेज लो इस फोल्डर के अंदर और उसको विजुअलाइज करके मेरे साथ शेयर करो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। यस गाइस, आपको ये कोड क्लियर है ना, इस कोड में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आदित्य, व्हाई डू यू वांट टू चेंज दैट एक्चुअली, क्या कोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से? Okay. So it's okay na, delete this one and you can make your other, even no need। तो आप ऐसे करो ना, आप दोबारा से क्रिएट कर लो, उसको रिमूव कर दो, उस कॉग्निटिव सर्विसेज को दूसरा बना लो।
ओके। एंड यस गाइस, कोड के बारे में मैंने पूछा था आपसे, क्या कोड समझ में आ गया और एग्जीक्यूट हो गया है? देन टेल मी। एंड अब आपका प्रैक्टिकल टाइम है, आपको क्या करना है, 5 मिनट लो, फटाफट से कोई और इमेज पिक करो और मेरे साथ शेयर करो कि आपकी उस इमेज पे आपको कैप्शन मिल रहा है इस तरीके का, जैसे यहाँ मिल रहा है मुझे, a woman showing her phone to a child, similar to that। आपने पिप इंस्टॉल किया था? Okay, wait, let me give one another library to you। वेट अ मिनट, मैं आपको पिप लाइब्रेरी सारी दे देती हूँ। यस, मुझे लगता है शायद आपका ना इंस्टॉल नहीं हुआ है। वेट, मैं आपको ना ये सारी पिप लाइब्रेरीज ही दे रही हूँ। आप एक बार दोबारा चेक करो, ये मैं ऑलरेडी जो मैंने दी हुई है आपको, ये वाली इंस्टॉल हो जानी चाहिए थी और इस तरीके का शो होना चाहिए था कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। आप एक बार चेक करो। तो फिर हो सकता है मेरे इस वर्जन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, तो आप इसको इंस्टॉल कर लो, जैसा अभी आदित्य ने शेयर किया आपके साथ। हो सकता है वर्जन टू वर्जन ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी अभी आदित्य ने शेयर किया ना ये वाला, आप इसको शेयर कर लो, आई मीन टू से इम्पोर्ट करा लो। Yes guys, is it done or not now? Okay, do it, आई एम वेटिंग। आपको क्या करना है, नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट करना है विद डिफरेंट इमेज एंड लेट मी नो, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स गाइस, क्योंकि अभी आपको पिप भी इंस्टॉल करना है और नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट भी करना है। 10 मिनट्स आई एम गिविंग, उससे पहले भी अगर आपका हो जाता है तो मुझे बता देना।
मुझे एक बार चैट बॉक्स में बस इतना बता दो कि कौन कौन ट्राई कर रहा है। व्हाट अबाउट अदर्स? मोहम्मद, आयुष, मनीष। ओके, डू इट फास्ट एंड लेट मी नो दैट यू आर डन। अपना पिक्चर शो करो जहाँ पे एरर आ रहा है आयुष। या फिर आप ऐसे करो आयुष, एक बार कर्नल को रीस्टार्ट करो। और दोबारा एग्जीक्यूट करो। क्यों आदित्य, आपका भी नहीं हुआ है क्या? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी ये जो पेप लाइब्रेरी है, क्या ये मैसेज दे रही है आपको ये वाला कि आपका जो पैकेज है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है? तो आप शागुफ्ता, आपने इंस्टॉल किया है फिर इसको, पाइथन कोड को? अरे अरे अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? मोहम्मद, आप भी ऐसे करो, कर्नल रीस्टार्ट करो। हाँ, आपका तो हो गया है ना, क्या नाम है? हम्म, आपको नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में एरर दे रहा है। एक सेकेंड। कर्नल, सबने एक बार रीस्टार्ट किया है इसको, कर्नल को? कर्नल को एक बार रीस्टार्ट करो, एक बार मैं ही चेक कर रही हूँ।
आपने आदित्य जब ये डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था पाइथन कोड, ये इंस्टॉल हो गया था आपका? पिप से जिसने भी ट्राई किया ये इंस्टॉल हुआ था? ओके, एक सेकेंड। एक काम करो आप सब, एक बार जो लास्ट की 2 लाइंस है ना, उनको स्टॉप कर दो, कमेंट कर दो और फिर एग्जीक्यूट करना एक बार। क्या वहां तक एग्जीक्यूट हो रहा है? बताओ एक बार मुझे, वहां तक हुआ आपका एग्जीक्यूट? हाँ, मैं तभी आपको कह रही हूँ लास्ट 2 लाइंस को एक बार आप स्टॉप कर दो और फिर देखो। बिकॉज हम विजन का मेथड यूज कर रहे हैं तो वो मेरे यहाँ। ओके ओके, उसको भी कमेंट कर दो आप एक बार, उसको भी कमेंट करो। जो थर्ड आपका है ना, फ्रॉम पाइथन अंडरस्कोर कोड इंपोर्ट विजन, इसको भी एक बार कर दो, इसको भी कमेंट कर दो एक बार। अरे 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 मोहम्मद, सभी को इंस्टॉल नहीं करना था, ये क्या कर दिया आपने? हमें ना देखना पड़ता है कि कौन सी सर्विस को हमें यूज करना है। आपने सारी कर रखी है? सिर्फ कंप्यूटर विजन को करो, सबसे फर्स्ट वन है जो आपकी, बाकी सब रिमूव कर दो यहाँ से। हेलो। एरर नहीं आएगा क्योंकि अभी आपको क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है। आप डिस्क्रिप्शन को प्रिंट कराओ, लास्ट थर्ड लाइन देख रहे हो आप, उसको प्रिंट कराओ, आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। एक बार ये जो फ्रॉम पाइथन अंडरस्कोर कोड है, एक बार अलग से करके देखो आप। मेरे यहाँ तो एग्जीक्यूट हो रहा है, आप ऐसे करो, फ्रॉम पाइथन कोड इंपोर्ट विजन को अलग लाइन में करना है, एक बार अलग सेल बना के एग्जीक्यूट करो, देखो एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है।
अब एरर नहीं आ रहा है? शागुफ्ता, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कह रही हो? एरर आया है? एरर आ रहा है, ओके। वेट गाइस। गाइस एक बार आप देखिए, राइट कॉर्नर पे आपको पाइथन वर्जन 3 है, देखना एक बार आप। आपका जो राइट कॉर्नर पे है वहाँ पे पाइथन 3 यूज किया हुआ है आपने? यस। सभी का एरर आ रहा है, किसी का भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। हाउ इट कैन बी? ओके वेट, मैं जुपिटर फाइल आपको सेंड कर रही हूँ, एक सेकेंड होल्ड करो आप। टिल देन आप ऐसे करो कि आप अपनी इमेजेस डाउनलोड करो, जिस इमेज पे आपको कैप्शन फाइंड आउट करना है, कोई इंटरेस्टिंग सी इमेज लेना। गाइस एक बार कोई भी एक अपना स्क्रीन शेयर करो, क्योंकि एरर सबका ही आ रहा है, जल्दी से करो एक बार।
इमेज को कैसे डिस्क्राइब करोगे आदित्य? वो तो इमेज शो कर रहा है आपका। चलो कोई बात नहीं, इसको ना यही ड्रॉप करते हैं, फिर मैं चेक करती हूँ प्रॉब्लम आ क्यों रही है। गाइस एक बार फिर भी ट्राई करो, एक बार कोंडा से करके देखो, एक बार हो रहा है ये, डिफरेंट ट्राई करो एक बार। जस्ट सिंपली टाइप कोंडा इंस्टॉल पाइथन अंडरस्कोर कोड, एक बार करके देखो हो रहा है वहां पे। किया आपने? आई नो बट वी कैन ट्राई। सेम एरर। ओके फाइन। ओके सी आदित्य, आपने चैटबॉट बनाया है ना अपना? आज अभी थोड़ा 5 मिनट है, पहले आप वही शो कर लो अपना, ये जो प्रॉब्लम है फिर मैं इसे कल सॉल्व करती हूँ, ठीक है? गाइज आदित्य ने भी अपना चैटबॉट बनाया था, आई थिंक आप सबने भी बनाया है, सो वन बाय वन वी कैन विजुअलाइज दैट। यस। सो आदित्य आर यू डूइंग? ओके। मोहम्मद आपने ट्राई किया था, बनाया था आपने चैटबॉट? मनीष कुमार आपने कल का वीडियो चेक किया? आपको चैटबॉट समझ में आया था मनीष?
मोहम्मद आप तो थे ना कल क्लास में, आई मीन फ्राइडे को। तो मोहम्मद आप ऐसे कर लेना, वीडियो आपके साथ शेयर हो चुकी है, आप चेक करना दोबारा से, ठीक है? जब एक बार आप दोबारा चेक कर लोगे तो आपसे बन जाएगा, स्टेप बाय स्टेप उसमें है ही वहां पर वीडियो में, यू कैन फॉलो। आदित्य यू आर टेकिंग टाइम। मनीष आपने ट्राई किया चैटबॉट? एंड आयुष, कामिनी, आपको सबसे पहले क्लिक करना था Q&A मेकर, Q&A मेकर .ai, आपको उस पर क्लिक करना है। मैं फिर से बोल रही हूँ मनीष, Q&A मेकर .ai, आप इस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर नॉलेज बेस दिखाई देगा, क्रिएट नॉलेज बेस, ठीक है? देन यू कैन मेक योर ऑन। That's what I told you, that you have to do some R&D. कुछ करो, रिसर्च करो, कोशिश करो, यही तो टास्क है। मॉडल बनवा दिया मैंने आपका, अब आपको इम्प्लीमेंट तो खुद करना होगा, और वही आपको मुझे शो करना है। नो, पहले आप करो, बाद में। अभी नहीं दूंगी मैं कोई भी हिंट, नो। अगर मैं हिंट दूंगी तो आप ऑब्वियसली कर ही लोगे, वही तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ट्राई करो। आदित्य, आर यू देयर? ओके 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 गाइस, लेट्स सी द चैट बोर्ड। आपने कौन से टॉपिक पे बनाया हुआ है? Okay, so your chatbot is ready, but you have not connected your chatbot with any channel, right? Have you connected your chatbot with any channel? Okay, okay, okay. Okay, actually left pane I didn't see. Okay, that's good. See, Aditya is done with Telegram. Okay, okay, good job. Good job, Aditya. I was at least expecting from you. Okay, good one. Yes. Okay, Manish, you got your knowledge base? See, guys, Aditya is done. So you can take help from him. Very good job, Aditya. Great. Where is Ayush? Yes, Ayush. Did you try? Okay. Then don't get late for that. Actually, अगर आप अभी मिस कर दोगे
तो डेफिनेटली कभी टाइम नहीं मिलने वाला. तो इट्स बेटर साथ साथ कर लो इसकी प्रैक्टिस, तो बन भी जाएगा और शायद आप उसे कनेक्ट भी कर पाओगे किसी चैनल से. राइट आयुष? डोंट मिस इट. एंड मोहम्मद एंड कुमार, अब आपका टास्क है कि आपको वीडियोस देखनी है और अपना चैटबॉट क्रिएट करना है और चैनल से कनेक्ट करना है. एंड सेम विद कामिनी एंड शागुफ्ता. इफ यू वांट हेल्प of Aditya, you can take and create it with the channel, but not with the same Telegram. By with another one, by with WhatsApp or with Skype, whatever you want to use, it's up to you, but not same. Okay, guys. Instagram is also there. Right? Okay, then tell me now. Did you get something interesting or not by today's session? It's not possible. Why it's not running? Aditya, do one thing. Share screenshot with me. Not screenshot. Share screen recording with me on mail. Okay, I will check. So we have to complete in computer vision these all things. Code was stuck. That is fine. We will solve that. Image analysis हो गया, image classification है, object detection है, form recognizer है, OCR है. अभी बहुत सारे काम करने हैं. What? Code stuck ना? Yeah. Thank you. Definitely, if you will utilize these, so it will be helpful for you all. Okay. अभी बहुत कुछ है इसमें. अभी अब जो हमारे अभी 6-7 दिन और पेंडिंग है, तो अभी कर लेंगे हम लोग इन चीजों को कंप्लीट. Okay, guys. Okay, then see you tomorrow at 7 p.m. Okay. Bye bye. No, not at all. How much you want in these sessions? No, Shagupta, not at all. It is a very big package actually, big library. No, we're not going to do in this. Hmm. Welcome, Manish.